Hello everyone, I hope you all are doing great. So today we will be talking about one of the issues that most of the students have shared with me. They were more concerned about the sleep, laziness, procrastination while preparing for NEET examination. As you know that this examination is just approaching nearby, and we have only 3-4 months left in order to prepare for this examination. So it becomes very much essential to share this topic with you and the strategy and tips and tricks to avoid such kind of problems or to just resolve the problem of sleep laziness or procrastination while preparing for NEET examination. All right, so let's begin. Before beginning, just let me tell you guys, दिस इज अन अकेडमी जहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस में लेता हूँ, वहाँ पर अभी टेस्ट चल रहे हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट हम अभी टॉपिक बाय टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, एंड वी आर कंडक्टिंग टेस्ट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो हियर टुडे I will be taking and conducting the test for cell, the unit of life. So if you are prepared and you are ready for the test, you can just join me and jump in the test at 6 p.m. Okay, let me just write it here. It is 6 p.m. today. And for any of the important subscription that you are looking for, like Iconic or any Unacademy Plus subscription, you can utilize the discount and off available by using the code KK Live. That is, it is one of the simplest code, like KK Live. Okay, so you can just utilize your 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं अनअकैडमी में मेरे द्वारा, उनमें हम बेसिकली टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एंड फुल कोर्सेज पर जो टेस्ट हुए हैं, कुछ कंडक्ट हुए हैं और कुछ कंडक्ट होने अभी बहुत सारे बाकी हैं। अपार्ट फ्रॉम वंस बायोलॉजी इज कंप्लीटेड, आई विल बी टेकिंग टेस्ट फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड वी विल अप्रोच दो सब्जेक्ट एज वेल, वन बाय वन। सो हमारा टारगेट ये है कि किसी भी तरह से हमको इन 3-4 महीने में अनअकैडमी पर जितने भी टेस्ट हो सकते हैं हम कंडक्ट करा सकते हैं। क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज की फॉर्मेट में, एनसीईआरटी बेस्ड एंड नीट प्रिडिक्टिबिलिटी को देखते हुए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं उस टेस्ट में। सो यू जस्ट अटेम्प्ट इट लाइव बाय अवेलिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और ये फ्री में है। अगर किसी तरह का आपको इशू आता है, यू जस्ट लेट मी नो, और एन अकेडमी टीम इज अवेलेबल टू सॉर्ट आउट दैट इशू ऑल्सो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड whole class is free, so you can just jump in and take the test. All right, so apart from that, you can utilize the code also. अगर कोई फ्री क्लास होती है तो के लाइव कोड है, आप उसको यूज करके एंटर कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन गाइस। सो मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाउ टू अवॉइड बीइंग लेजी ड्यूरिंग द नीट प्रेपरेशन। ये क्वेश्चन था जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, हाउ टू नॉट बी लेजी स्लीपी ड्यूरिंग द स्टडी टाइम। ये भी एक क्वेश्चन इनपुट मुझे स्टूडेंट से ही मिला है। How to manage my sleep cycle, unable to stop sleep while study, how to avoid feeling lazy, being lazy or sleepy while studying, procrastination during study hours, and how to avoid that. So these are some of the questions that have been provided to me by the students, like जो इस issue को face कर रहे हैं, and they are not able to cope with the particular solution, and just coming on to a solution of these kind of problems of sleep, laziness, procrastination, avoiding things and avoiding studies during the study target timing and all. So they are not able to achieve their targets on daily basis, like they are facing some sort of problem. The targets, and those targets are based on daily, मंथली और वीकली। ठीक है, सो उनके जो टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, किन के कारण, किस चीज के कारण? बीइंग लेजी, बीइंग स्लीपी और बीइंग प्रोक्रेस्टिनेटर और काइंड ऑफ लाइक, इन सब चीजों के कारण वो अपनी स्टडी अवॉइड करते जाते हैं। एंड देन अल्टीमेटली इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि इसकी क्या मतलब परिणाम हमारे सामने आते हैं, या फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस अल्टीमेटली वी जस्ट फेस अप लाइक इन आवर प्रिपरेशन? सो द कॉन्सिक्वेंसेस आर हीप ऑफ बैकलॉग। आपके पास बहुत सारा पढ़ने के लिए मटेरियल इकट्ठा होता जाता है, बिकॉज यू आर अवॉइडिंग स्टडी, एंड यू आर अवॉइडिंग योर पर्टिकुलर टाइम टेबल, यू आर अवॉइडिंग योर टारगेट्स ऑन डेली, वीकली और मंथली बेसिस। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैव द हीप ऑफ बैकलॉग्स, वो इकट्ठा होने लग जाता है। अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम फिर वहां एक नई स्टार्ट हो जाती है, जो कि अपन को कवर अप करनी होती है बैकलॉग को। और अल्टीमेटली वी आर जस्ट गोइंग टू सी दैट कि हमारे पास अभी वैसे भी सिलेबस करने को पड़ा है, उसके अलावा रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं, और उस बैकलॉग को भी कवर अप करना है जो हमने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, स्लीप या फिर लेजीनेस के कारण इकट्ठा कर लिया, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर नीट प्रिपरेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ही स्टूडेंट्स में ऐसी चीज होती है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। So I'm here to suggest some of the important tips,
ट्रिक्स एंड कुछ मेथड टेक्निक्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इन योर रूटीन, डेली रूटीन, वीकली रूटीन, व्हाटएवर बी। सो आप अच्छे से उसको कवर अप कर पाएंगे। सी यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, मेक योर स्टडी मोर इंटरेस्टिंग देन मेकिंग इट मोर हेक्टिक और बोरिंग बाय क्रिएटिंग बेटर स्टडी प्लान, रियलिस्टिक गोल्स एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल। गाइज यू विल अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है इस लाइन का और कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बिकॉज़ इसमें यहाँ पर मेनली आपको 3-4 चीज़ों पर फ़ोकस दिया गया है। पहला ये कि आपका स्टडी प्लान किस तरह से है, वो आपकी डिफ़ाइन करता है कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा है, आपका स्लीप साइकिल क्या होने वाला है, आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है। स्टडी प्लान में सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा आता है रियलिस्टिक गोल्स कि आपके गोल्स कितने रियलिस्टिक हैं और आपका टाइम टेबल कितना रियलिस्टिक है और कितना मतलब कि सपोर्टिव है, आपकी पूरी दिनचर्या को किस तरह से आपका टाइम टेबल सपोर्ट कर रहा है, जो पढ़ने का टाइम टेबल है, वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट? सो लेट्स हैव ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन, हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको स्लीप आ रही है, नींद आ रही है, तो मे बी आपका जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, हो सकता है कमरे में आपकी डिम लाइट हो, आपका जो लाइटिंग मतलब सिनेरियो है कमरे का, वो ठीक नहीं हो, उसमें थोड़ा डार्क कलर हो। डार्क कलर को देख कर के डार्कनेस से थोड़ा-सा नींद का लगता है, क्योंकि अंधेरे में नींद जैसा फील होता है कई स्टूडेंट्स को। सो हैव अ वेल लाइटेड स्टडी रूम। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, आपका जो माइंड है ना एक्टिव रहेगा। एक्टिव क्या-क्या रहेगा आपका माइंड, आईज़, आईज़ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लाइटिंग का, ठीक है? तो आईज़ जो है तेज़ रोशनी होती है तो अपन सो नहीं पाते, राइट? कई लोगों को ऐसा होता है ना कि तेज़ रोशनी में नहीं सो पाते, लाइट्स में नहीं सो पाते। सो आईज़ और आपका माइंड, ये रिसेप्टर हैं इस तरह, इस पर्टिकुलर पॉइंट के। इस पॉइंट के रिसेप्टर कौन है? आईज़ एंड माइंड। आपका आईज़ और माइंड जो है लाइट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और अगर ऐसा है होगा तो आपको लगेगा कि यार अभी उजाला है और लाइक यू विल नॉट फील लेज़ी और स्लीपी। अगर ऐसा नहीं होगा सो यू विल बी एबल टू अवॉइड दैट। अगर इस तरह की कोई सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि आपको स्लीपिंग को ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करती है। फॉर एग्जांपल यू आर जस्ट स्टडिंग ऑन अ बेड, आप किसी रिलैक्सिंग रिक्लाइनर पर बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो और फिर पढ़ रहे हो, अपने हाथ में बुक है बट यू आर जस्ट रिक्लाइनिंग ऑन अ रिक्लाइनर, सोफा पर बैठे हो, तो यू नीड टू अवॉइड दैट। ओके, नॉट ऑन अ बेड, यू नीड टू टेक अ चेयर एंड टेबल। एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स सच एज स्लीप, लेजीनेस और ये सब चीजें जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन। अल्टीमेटली स्लीप और लेजीनेस जो है लीड करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को। अल्टीमेटली यू विल फील कि अच्छा मुझे रिलैक्स हो रहा है एंड देन योर माइंड विल से ओके लेट्स हैव अ स्लीप फॉर लेट्स से हाफ एन आवर, मे बी 1 hour, एंड देन वी विल स्टडी बट दैट हाफ एन आवर नेवर ends, right? It becomes like 2 hours sleep time. So ultimately you end up just wasting your time in sleep. So you need to avoid that, right? So the study environment I am talking about, study environment must be very well settled. Well settled or organized study environment, ठीक है? एंड हैव लाइटर मील्स, हाइड्रेट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल आप जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद आप पढ़ने बैठेंगे ना, देन यू विल डेफिनेटली फील स्लीपी। थोड़ा-सा आपको लगेगा कि अब खाना खा लिया है एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी फॉर लॉन्गर। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा पढ़ पाऊँगा एंड आई एम फीलिंग वेरी, वेरी लो ऑन दैट। तो आपको क्या करना है, अपने मील्स को थोड़ा हल्का रखना है। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा अगर खाने की हैबिट है आपकी, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता चलता कि आपने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया और फिर बाद में अल्टीमेटली यू जस्ट गेट रियलाइज़ कि यार थोड़ा-सा आज ज़्यादा हो गया एंड देन फाइनली you end up sleeping and just avoiding things, doing work, like avoiding study also. So you need to just keep yourself first of all hydrate। आप अपने पास पानी की बोतल रखिए, अपनी टेबल पे, डेस्क पे रखिए, ठीक है? आप हल्का-हल्का खाइए, थोड़ी-थोड़ी देर में थोड़ा-थोड़ा खा लीजिए। दैट वुड बी बेटर देन ईटिंग ऑल द थिंग्स एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर आप सब कुछ एक साथ खा लेंगे, देन व्हाट वुड हैपन इज़ लाइक योर बॉडी विल टेक टाइम टू प्रोसेस दैट फूड इनसाइड योर स्टोमक एंड ऑल द थिंग्स। लाइक मेटाबॉलिज्म जो है उसका रेट थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा खाते रहेंगे, अपने आप को हाइड्रेट भी रख रहे हैं, सो टाइम टू टाइम इससे क्या है आपकी एक्टिवनेस भी बनी रहेगी और आप एक्टिव भी फ़ील करेंगे और साथ में आपको ऐसा लेज़ीनेस नहीं आएगा फूड ज़्यादा खाने के कारण। ऐसी वाली चीज़ हमेशा के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, लाइक आपके पूरे प्लान में होनी चाहिए, लाइक आपकी ईटिंग हैबिट्स। अगर आपकी चेंज करने की इच्छा है कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें, देन जस्ट लुक फॉर अ बेटर प्लान जो कि आपके पूरे
टाइम टेबल के हिसाब से चले कि किस टाइम आपको खाना चाहिए और किस टाइम आपको मतलब अच्छे से मील लेने चाहिए अपने, मे बी ब्रेकफास्ट, मे बी द इवनिंग स्नैक्स, लंच या फिर ब्रंच, व्हाटएवर यू डू, और रात में डिनर, ठीक है? सो ऑल दीज थिंग्स, राइट? लाउडर द वॉइस बेटर द स्टडी। अपन ने बचपन में ऐसा सुना होगा कि पढ़ पढ़ के या फिर बोल बोल के याद करने वाली कला, ठीक है? आपने बचपन में सुना होगा कहीं ना कहीं, कई लोग बोलते थे मौन रहकर पढ़ो, कई लोग बोलते थे थोड़ा बोल करके पढ़ो, बोल करके पढ़ने से माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर वही है कि जितनी अच्छी आवाज में और मतलब सॉफ्ट आवाज में या फिर अच्छे बेहतर मतलब एक पिच के साथ अगर आप किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, देन योर माइंड गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है? वो एक्टिव होकर उसको सुनता है। आपको सुनने पर फोकस करना है कि योर माइंड इज लिसनिंग। सो फॉर दैट यू नीड टू जस्ट अ बिट, आपको थोड़ी सी वॉइस ऊपर करनी होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चिल्ला के पढ़ो, लाइक देयर इज अ वे, राइट? यू नो दैट वे। बचपन से ही हमको बताया जाता है कि थोड़ा बोल बोल कर पढ़ो, कभी-कभी बोला जाता था बचपन में, ठीक है? सो यू नो दैट वे, है ना? कहीं चिल्लाने की बात नहीं है, कोई यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एक्सट्रीम आवाज़ ले जाकर के पढ़ें, वो तो कोई करता भी नहीं है। बट द थिंग इज़ लाइक आई नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि आप लोग थोड़ा-सा अगर फ़ील कर रहे हो स्लीपी, और ये हर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एवरी टाइम, यहाँ लिख देता हूँ, नॉट एवरी टाइम, जस्ट व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्लीपी। कब करना है आपको ये? व्हेनेवर यू फील स्लीपी, ओके? जब भी आपको नींद आए या लेज़ीनेस आपको फ़ील हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ये मेथोडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि आप बोल-बोल के पढ़ें, ठीक है? सो इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, ऑलराइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, कीप द डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर द मॉर्निंग। ये वाला पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्या होता है ना कि आप बाय द मिड ऑफ द डे और बाय द एंड ऑफ द डे, अगर आप हार्ड टॉपिक्स लेंगे, देन योर मोरल विल बी डाउन, क्योंकि आपको एक बार में समझ नहीं आ, हो सकता है कि नहीं आए, राइट? हो सकता है कि आपको एक बार में समझ नहीं आए, और हो सकता है वो आ भी जाए। आ जाए तो अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। अगर नहीं आएगा तो आप डेफिनिटली बाय कहते हैं ना, जेनेरिक एक वो होता है सिनेरियो जिसमें कि आप टेंड टू स्लीप, कि यार नहीं समझ आ रहा, अब थोड़ा-सा आराम कर लेता हूँ। माइट माइट बी कि मेरा दिमाग जो है ज़्यादा भर गया है, और मे बी पॉसिबल कि मेरे दिमाग ने अभी थोड़ा-सा इसको एक्सेप्ट करना बंद किया है। तो आई जस्ट लेट लेट मी टेक अ नैप और टेक अ स्लीप, और वो नैप और स्लीप जो है एक्सटेंड हो जाता है आधे घंटे के बहाने पूरे 2 घंटे तक, एंड टोटली यू जस्ट एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। सो कीप द डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ब्रेन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। आप नहा धो के बैठते हैं पढ़ने के लिए, यू जस्ट फील वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट योर गोल, योर टारगेट, योर डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स, राइट? आपको पता रहता है कि मुझे इस मंथ में इतना कवर करना है, तो इस वीक में मुझे इतना कवर अप कर लेना चाहिए, और इस वीक के टारगेट को पूरा करने के लिए इस डे के टारगेट को मुझे इस तरह से पूरा करना है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मॉर्निंग। या फिर कहते हैं कि आप जब भी जागें, अच्छे से नहा धोकर जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, देन यू विल फील फ्रेश इनफ टू टैकल ऑल द हार्ड थिंग्स इन ऑर्डर टू जस्ट कंप्लीट योर स्टडी टारगेट्स। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं, आप सुबह-सुबह ट्राई कीजिए, अच्छे फ्रेश माइंड के साथ ट्राई कीजिए, ताकि उस वक़्त आपका दिमाग खुला रहेगा, ओपन माइंडेड के साथ आप अच्छे से उस चीज़ को ग्रहण कर पाएँगे, समझ पाएँगे, उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ अपने अंदर मतलब समझकर उसका एनालिसिस कर पाएँगे कि ये टॉपिक था, इसका कॉन्सेप्ट था, और इस तरह से मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हैं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व विद मोस्ट ऑफ योर इफेक्टिविटी, अगर आप नहा धो करके अच्छे से सुबह-सुबह मतलब फ्री माइंड के साथ बैठते हैं, अगर किसी भी हार्ड टॉपिक को पढ़ने के लिए, ठीक है? कहने का मतलब ये है। सो डिफाइन योर, यहाँ पर लिख देते हैं, डिफाइन योर मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग स्टडी रूटीन, जिससे क्या होगा, बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है? It is essential to sleep for 7 to 8 hours every night in order to wake up fresh and energized and focus better. अभी भी मैंने बात करी थी, यही बात मैंने कही थी कि अगर आप सुबह-सुबह उठते हैं, अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे नहा धोकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, देन यू विल फील एनर्जाइज्ड, एंथुसियास्टिक, और फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, राइट? सो आपका ये जो फोकस, एनर्जी और फ्रेशनेस जो है, किस कारण से आ रही है? क्या आप नहा लिए इसलिए आ रहे हैं? एक फैक्टर वो हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर होता है कि आपने अपनी स्लीप का साइकिल कंप्लीट किया है। मेन बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ। आपका जो स्लीप साइकिल है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो ठीक से नहीं काम कर रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केवल 5 घंटे रात को सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं इस चक्कर में कि मुझे जल्दी उठ के सब कुछ पढ़ना है, एंड देन अगेन दिन में सो रहे हैं, फिर लंबे टाइम तक वापस सोते रहे, लेज़ीनेस हो रही है, मतलब
that means your sleep cycle is not completed, and that is just creating a problem or hurdle in your preparation. So यहाँ पर साइंटिफिक बात है जो कि सब जानते हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक नो नाउ डेज की 7 से 8 घंटे की जो एवरी नाइट आपकी स्लीप है, स्लीप साइकिल है, वो पूरा होना चाहिए इन ऑर्डर टू लाइक वेक अप अर्ली एंड जस्ट फ्रेश एंड एनर्जाइज, फोकस बेटर। रात को आप कितनी बजे भी सोइए, लेकिन अगर आपका टाइम डिफाइंड है सुबह उठने का, देन डेफिनेटली आप कितनी बजे भी सोइए सुबह टाइम पर उठ जाएंगे। लेकिन कोशिश करिए कि आपका 7 से 8 घंटे का जो स्लीप आवर है वो कंप्लीट हो, रिलैक्स्ड फील करो, आप उठने के बाद फ्रेश फील करो, एनर्जाइज्ड फील करो, ना कि आलस के साथ साथ आप पूरे दिन को वेस्ट कर दो, राइट? So designing a hectic schedule might seem as the way to go, but it is not feasible in long run. जब हमने पहली सबसे पहली स्लाइड देखी तब मतलब उसमें मैंने बताया था आपको कि आपका अनरियलिस्टिक या रियलिस्टिक गोल क्या होता है, और मतलब उससे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? तो यहाँ हम वही बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये रियलिस्टिक गोल होता क्या है। ओके। अब देखिए, किसी बच्चे ने कहा कि मैं 1 सप्ताह के अंदर अंदर फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। हाउ रियलिस्टिक इट इज? ये किस पर निर्भर करता है? उसकी प्रोबेबिलिटी पर, कि वो कितना परसेंट ऑफ द सिलेबस 1 सप्ताह में कंप्लीट कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी है, और एक्चुअल में वो कितना कर लेगा। ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल निकालने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी क्षमता कितनी है किसी टारगेट को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट करने की। अगर आप किसी टारगेट को किसी टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट इज योर रियलिस्टिक गोल। अगर मान लो आप हवाबाजी कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं इतना कर लूंगा, 1 महीने में मेरा पूरा सिलेबस हो जाएगा, 2 महीने में तो मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी मैं लगा लूंगा, like it seems to be a very unrealistic. Why? Because the syllabus is huge. आपने देखा होगा, सिलेबस देखा होगा अच्छे से, आपने उसको क्वेश्चंस देखे होंगे, राइट? यू नो दैट हाउ मतलब इतना डिफिकल्ट हो जाता है इतने कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक कर पाना। बट द थिंग इज, डिफिकल्टी को अपन किससे तोड़ सकते हैं? डिफिकल्टी टूट सकती है मेहनत से, हार्डवर्क से। स्मार्टली अगर मेहनत करेंगे, डेफिनेटली इट विल लाइक बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अपना रियलिस्टिक गोल रखें, यानी डेली बेसिस पर, डेली, वीकली और मंथली। मैं आपको माइक्रो और मैक्रो वाली जो एनालिसिस है उसको मैं बताऊंगा आपको, अगली वीडियो में वो मिल जाएगा, अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है। उसमें अच्छे से मैं इसको डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से क्या क्या आपको करना चाहिए वो मैं अच्छे से बताऊंगा उस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आप ये बात जान लो कि रियलिस्टिक गोल जो होता है, आपको डेली बेसिस पर भी रखना है, वीकली बेसिस पे रखना है और मंथली बेसिस पे रखना है। क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लीप, लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि अगर आपके गोल्स रियलिस्टिक नहीं होंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और मोरल डाउन हो जाएगा, अगर आप मोरल क्यों डाउन होगा? क्योंकि आप उस अनरियलिस्टिक गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। आपका गोल अनरियलिस्टिक अगर होगा तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली बात है। और जैसे ही आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे वो डेली टारगेट हो, वीकली टारगेट हो या मंथली टारगेट हो, इट बिकम्स लाइक वेरी हेक्टिक, राइट? सो आपका मोरल अपने आप डाउन हो जाएगा, और मोरल डाउन होते ही देन यू विल फील कि छोड़ो यार, छड्डो सब कुछ, अब तो अब सोते हैं थोड़ा सा, एंड जस्ट जस्ट ट्राई, यू विल ट्राई टू अवॉइड थिंग्स फ्रॉम योर एंड, चाहे वो स्टडी हो, चाहे कोई काम हो, या फिर कुछ भी हो, यू विल अवॉइड, क्योंकि आपका मोरल ही डाउन हो गया, राइट? तो उसको कैसे डील करें? उस मोरल को इंक्रीज करने के लिए मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी तरह का एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए तो आई एम अवेलेबल, नो इश्यूज। आई कैन जस्ट हेल्प यू विद ओवरकमिंग एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जिसमें भी आप अगर कभी फील करते हो, लो फील करते हो, जस्ट नो इश्यूज, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड लेट मी नो, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन एंड यू विल फील बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपना रियलिस्टिक टाइम टेबल भी बनाइए। रियलिस्टिक गोल के साथ क्या इंपॉर्टेंट? रियलिस्टिक टाइम टेबल, टीटी लिख देता हूँ, टीटी यानी टाइम टेबल, ठीक है। रियलिस्टिक टाइम टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंपॉर्टेंस है कि आप लोग अपने आप को एक्टिविटीज भी दीजिए। मींस एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी इंटरेस्ट की, हॉबीज, एक्टिविटीज जो होती है ना आपकी, हॉबीज हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जो आपको करने में अच्छा लगता हो और आप फ्री टाइम में एंजॉय करते हैं, वो एक्टिविटीज इसलिए डालनी जरूरी है ताकि आपको नींद ना आए। अपने पढ़ने के दौरान दिन में एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी रख लीजिए। इट कुड बी योर जॉगिंग, इट कुड बी योर गोइंग टू पार्क, विजिटिंग पार्क, नियर बाय प्लेसेस, हैविंग स्ट्रीट फूड, और जस्ट गोइंग चिलिंग विद फ्रेंड्स फॉर सम टाइम, लाइक नॉट telling you to go and just waste your 1 hour, 2 hour, just for some time talking to your best friend could just relax you, make you feel better, understood? तो just
दीज एक्टिविटीज यू नीड टू टेक केयर ऑफ। लाइक आपको ये थोड़ा अपने डेली प्लान में, वीकली प्लान में लगाना है, और इन एक्टिविटीज को आप एज अ रिवॉर्ड अगर आप करते हैं ना, एक ट्रिक है जिसमें आप अपनी जो अच्छी लगने वाली काम है, अपनी अच्छी लगने वाली एक्टिविटीज है, उनको एज अ रिवॉर्ड अगर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, दैट गिव्स अस मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, एक इंप्रूवमेंट मिलता है, विल पावर इंक्रीज होती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर पर्टिकुलर प्रेपरेशन साइकिल। सो मेनली मेरे कहने का मतलब यही था कि आप इसको फॉलो कीजिए कि रियलिस्टिक गोल हो आपका, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, रियलिस्टिक टाइम टेबल हो जिसमें आप एक्टिविटीज को भी पार्ट दें, अपनी एक्टिविटीज को उसमें एक हिस्सा बनाएं दिनचर्या का, ठीक है। और वो इंटरेस्ट की होनी चाहिए, यूं नहीं कि आप जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग। कुछ अच्छा लगे वैसा करो। हो सकता है तुमको म्यूजिक पसंद हो, थोड़ा सा अच्छा सा म्यूजिक सुन लो। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा लाउड वॉइस पर सुनो, अच्छे से थोड़ा थोड़ी देर के लिए जो आपको रिफ्रेश कर दे, ठीक है, आपका पढ़ाई में मन लगा दे, ऐसे गाने सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको मान लो हो सकता है कि किसी तरह से मतलब गिटार बजाना पसंद है, तो यू कैन जस्ट डू दैट, राइट। सो दीज एक्टिविटीज विल रिफ्रेश यू एंड इट विल गेट यू आउट फ्रॉम द बोर्डम ऑफ स्टडी। आप जो स्टडी से बोर हो जाते हो ना, तो ये अगर बीच बीच में तड़का डाल दोगे ना अपनी इंटरेस्ट वाली, हॉबीज वाली चीजों का, एक्टिविटीज का, देन इट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ योर बोर्डम, ठीक है। हम रियलिस्टिक गोल और रियलिस्टिक टाइम टेबल पे और विस्तार से बातें करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में, एंड आई विल लेट यू नो कि किस तरह से ये सारा मैनेजमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई किसी तरह की कोई क्वेरी हो, जस्ट लेट मी नो, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, नीट मास्टर जी नाम से है उसका, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मैंने बता ही दिया है कि अनअकैडमी पे मैं आज टेस्ट लेने वाला हूं, तो किसका टेस्ट होगा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का टेस्ट होने वाला है। सो इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कीजिए और इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए 6 बजे, शाम को 6 बजे आज। सो बी रेडी विद इट एंड यू कैन यूटिलाइज के लाइव code in order to get the 10% off on Unacademy. Apart from that, if you have any doubt, you can directly reach out to me. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपका, कुछ कुछ क्वेश्चन हो जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई इनवाइट यू टू post and just ping me or message in order to get a video on that particular problem or issue जो कि आप फेस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से आपको मिल जाएगा। So don't worry about that. So meanwhile, I'll wish you all a very best of luck and all the best for your preparations, and have a great learning, guys. Jai Hind, and let's end this session.